Hello and welcome to SK Live. I'm your host Shanvi Sadana. Today we have with us former Indian fast bowler V Singh. Very warm welcome to you, sir. How are you doing? Thank you. Thanks a lot. I'm good. Thank you. How are you? I'm good too. Thank you so much. How is it going through the lockdown period? What have you been doing? How challenging is it? It's okay. It's okay. We have to accept it now because it's spreading quite rapidly now. So we have to accept it. So it's okay. It's been 3 months. Doing a little bit of workout every day, little bit of reading. That's all. Okay. Okay. Yeah. And today, the whole nation is grieving about Shashank Singh Rajput, who was a brilliant actor and he played such brilliant roles. Our condolences to him. What do you feel about the mental stability of people at this time? I guess maybe this lockdown period actually gets some time. People because no work, they can't go out, and a lot of negative thoughts comes in the mind. But I guess you have to be stable because we have to get through this together. So I believe condolences to his family, and they're very sad about his demise. So yeah. So, आपके accordingly, how does one keep the mental stability, मानसिक संतुलन को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि हमें मतलब आत्महत्या करनी पड़े? It's such a brilliant talent. Yes, और definitely because I guess MS की मूवी से काफी उन्हें फेम बिल्कुल मिला था. सो आई बिलीव बिल्कुल उन्होंने एक स्पोर्ट्स की फिल्म भी की थी, तो स्पोर्ट्स फैन डेफिनेटली थोड़ा सा उनको ज्यादा होता है कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर होती है. सो आई गेस उन्होंने वो टाइम पे मूवी में MS के किरदार में थोड़ा सी उनकी लाइफ भी जी थी. बट आई गेस आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई ही डिड इट. But he was definitely very good actor, and definitely we will miss him. So I guess इस period पे especially जब many people are losing jobs also, and this corona, I don't know when it will go, but I guess सबको ही इस चीज का नुकसान है. तो किसी बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से. तो काफी एक्सट्रीम किया उन्होंने, जो कि आई गेस काफी सालों तक हमें याद भी रहेगा, because he was a brilliant actor. And I heard somewhere कि he was also about to do MS movie 2 to part 2. Sorry, MS Dhoni part 2. So sorry to hear that, and yeah, condolences definitely to his family. Yes, of course. The whole nation is grieving on his death, Yeah. and of course, a lot of other people who are, just dying because of coronavirus throughout the world. It's a sad time for everybody. Yeah. Yeah, but tell us, Yeah. you are the coach of the Chandigarh Ranji Trophy team. Do you think Ranji Trophy will happen this year? देखो, सबसे पहले तो आई विल डेफिनेटली से कि जो भी प्लेयर सिक्योरिटी के लिए जो भी बेस्ट होगा वही करेगी गवर्नमेंट और BCCI. तो अगर सिचुएशन अच्छी होगी तो आई गेस होना चाहिए, जरूर होना चाहिए. बट अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर मेरे हिसाब से इसको फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे के लिए, जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होती. बिकॉज डेफिनेटली जब आप एक टीम गेम खेलते हो तो उसमें इस चीज़ का चांस काफ़ी हो जाता है फैलने का. तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को देखना चाहिए कि उस टाइम पे इसकी सिचुएशन क्या होगी. पर राइट नाउ जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से अभी हम इसके बारे में नहीं सोच सकते. नहीं हो सकता. तो आपने कुछ दिनों पहले आपने 2003 अंडर 19 टीम की फोटो फेसबुक पे लगाई थी, जिसमें आप यू वन द 2003 एशिया कप इन पाकिस्तान, एंड वो टीम में इरफान खान, दिनेश कार्तिक, पीयूष चावला, सॉरी, रॉबिन उथप्पा एक्सेट्रा भी थे. तो आप उन दिनों के बारे में बताइए कुछ. देखिए, वो टाइम थोड़ा डिफरेंट था आज से. तब अंडर 19 का एक काइंड ऑफ उस हमारे से पहले युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और ऐसे बड़े बड़े नाम, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग पहले वर्ल्ड कप खेल के गए थे.
तो वहां से जी। तब एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि अंडर 19 में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको ऊपर देखा जाता है मेन टीम में या मेन हायर लेवल पर। तो हम 2003 में एशिया कप खेलने गए एंड वी वन दैट सीरीज एंड मेरा उसमें कुछ मैचेस में अच्छा था पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली, तो वी वन दैट एंड उससे आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद हमारा बांग्लादेश में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी था। तो उसमें कुछ जी। और लड़के भी ऐड हुए थे, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, जैसे इरफान का बोला, पीयूष का बोला, आरपी सिंह हम्म। ऐड हुए थे वर्ल्ड कप में। तो उस जो सा वो एक मेरे ख्याल से वो जो सा एक पीरियड था उस टाइम के जो से लड़के थे, काफी लड़के इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया जिन्होंने जाके आगे जाके। तो वो एक पीरियड था कि बड़ा अच्छा था वहां से। स्पेशली मेरे को और कुछ और लड़कों को काफी आगे खेलने को भी मौका मिला अगले सालों में जाके। हमें ऑस्ट्रेलिया में मेरे को और आरपी को उन्होंने स्कॉलरशिप पे भी भेजा बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंसेस अंडर 19 में। तो बीसीसीआई ने भेजा था बॉर्डर गवास्कर स्कॉलरशिप के लिए। तो इट जी। वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट प्लेइंग इन पाकिस्तान आल्सो एंड वी स्पेशली वी वन इट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल। सो दैट वाज ग्रेट मोमेंट इन माय लाइफ। तो आप आपका सबसे करीब दोस्त कौन है उस टीम में? मैं इरफान से काफी क्लोज हूँ। बीइंग अ फास्ट बॉलर मैं उनसे काफी बात करता रहता था अपनी बॉलिंग के बारे में भी, और वो भी मेरे से पूछते रहते थे। अभी रिसेंटली हम दोनों ने खेलना छोड़ा है, तो अभी लास्ट थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी। सो अच्छा। अभी भी हम हालचाल पूछते रहते हैं। ही इज आल्सो फाइन इन बड़ौदा विद हिज फैमिली एंड या उनसे काफी अच्छी दोस्ती रही है। अच्छा। बाकी भी अच्छे थे। तो सुरेश रैना से अच्छी दोस्ती थी। राइडू भी बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड ओके, ओके, वेरी है। गुड। तो आपका आप इतने फास्ट बॉलर थे, तो आप एकदम से डिसअपियर कैसे हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से? क्या हुआ था तब? एक्चुअली मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से डिसअपियर नहीं हुआ था, मैं एक्चुअली सारी क्रिकेट से डिसअपियर हो गया था। एंड बिल्कुल, वो वो एक रीजन था। या सो एक्चुअली एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि हुआ क्या था मेरे साथ। एक्चुअली आई बिल्कुल। हैड अ एंकल इंजरी इन 2008। तो मेरा वो आईपीएल फर्स्ट सीजन था, उसके बाद मैं ऑपरेशन करवाने ऑस्ट्रेलिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन करवाने के बाद जब मैं वापस आया तो आई हैड अ गुड रिहेबिलिटेशन। तो मैंने दोबारा से खेलना परस्यू किया एंड डोमेस्टिक खेली शुरू की। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन आईपीएल अगेन फॉर किंग्स 11 पंजाब। सो बट हम्म। जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया आई स्टार्टेड हैविंग सम प्रॉब्लम इन माय बैक देन स्ट्रेट अच्छा। आफ्टर माय एंकल। तो वो बैक प्रॉब्लम इनिशियली थोड़ा कम थी, बट धीरे 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 स्टार्टेड हर्टिंग मी मोर। तो तो अपर बैक था या there लोअर was बैक या मिडिल बैक? it was lower back and लोअर बैक। but उसके बाद there was a one point in my career that I was not even able to I was not able to walk at one ओह! point. So then I had to take a decision ki what to do next, and I decided ki then the doctors told me कि इसकी भी सर्जरी होगी। Then again I had to fly to Australia. तो ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर मैंने सर्जरी दोबारा से करवाई बैक की। So then there was a long rehab period for a year and a half. Then I made a comeback for Punjab, played a season and a half. तो यस। yeah, so how that was the reason कि बैक टू बैक मेरे को इश्यूज आए। एंड पहले एंकल का प्रॉब्लम आया, फिर बैक वाज वेरी सीरियस। एक्चुअली डॉक्टर टोल्ड मी दैट बहुत मुश्किल होगा दोबारा से खेलना, बट फिर वो विल पावर से दोबारा से कम बैक किया। सो दैट वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग आल्सो। पर बैक में हुआ क्या था? कि वाज इट टू मच वेट ट्रेनिंग और वाज इट व्हाट हैपेंड टू द मतलब हुआ क्या बैक में कि आपको इतनी दर्द हुई? एक्चुअली वो rightly said weight training because I was not much into weight training. So जब मेरे एंकल इंजरी के बाद मैं आया, so I decide मैं थोड़ा सा I don't want to take trainer's name but because everyone has their name. So तो कुछ ट्रेनर था कि उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में डाला कि स्पेशली फिटनेस प्रोग्राम पे, कि जिससे मैं एंकल इश्यू से बाहर हूँ। मैं एंकल इश्यूज से बाहर आ गया, बट I never used to do a lot of weight training and all. I always used to do ground fitness and all. So वहाँ पर जब मैंने वो चीज़ की for almost 6 months I did that, and I guess those 6 months actually hurted me a lot.
Oh, so a player has to be very very careful कि वो कितना weight Yeah, उठा सकते हैं और yeah, yeah. One thing I want to say, yes, especially because now I'm coach and yeah, here in Chandigarh or in Punjab, I yes, keep talking to my players also. See, yes. uh, whatever योर बॉडी सूट्स, आपकी बॉडी को जो सूट करता है आप वो कीजिए। कभी ऐसे ना कीजिए कि हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं या हमें क्या कोई, हाँ आप सुन सबकी लीजिए, ट्राई भी कीजिए, बट जब आपकी बॉडी को जो सूट नहीं करता वो ना कीजिए, बिकॉज दैट हैपेंड विद मी कि आई लिसन फ्यू पीपल एंड दैट एक्चुअली हर्टेड माय कैरियर, नॉट ओनली माय बैक। सो Hmm. मेरे हिसाब से अपनी बॉडी को जानना जरूरी है, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, कुछ भी हो। सो बट ओनली डू दैट देन कि जब आप बिल्कुल श्योर हो कि इट विल हेल्प मी। अगर आप श्योर नहीं हो तो मत कीजिए। तो अगर कोई भी प्रेशर कोच भी डाले उनको साफ मना कर दो कि नहीं हो सकता, ये बॉडी जी नहीं है टाइप। डेफिनेटली आपकी बॉडी, आपको पता होना चाहिए कि कि दोज वर द डिफरेंट टाइम्स। जब आप आजकल के लड़के काफी अपने आप को और तरीके से फिट रखते हैं, दोज वर द डिफरेंट टाइम्स 10-12 इयर्स बैक। तो बिल्कुल। एंड आई वाज वन ऑफ द काइंड कि मैं करता भी था, तो आई नेवर यूज्ड टू से नो। तो अगर आई गेस कि उस टाइम पे नो की होती तो शायद अभी तक खेल रहा होता। तो इट्स बेटर टू से नो दैन टू रिग्रेट लेटर, ये कह रहे हैं आप, है ना? यस डेफिनेटली। तो आपके आपके करियर में फास्ट बॉलिंग आपको किसने सबसे ज्यादा हेल्प करी? हु मेड यू व्हाट यू आर टुडे? मेरे अर्ली ऑन कैरियर में सी आई वाज इन चंडीगढ़ ऑलवेज। सो चंडीगढ़ में कि व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 8 और 9, तो तब कपिल पाजी वाज ऑलमोस्ट रिटायरिंग। तो वो ग्राउंड में आते थे। डेफिनेटली चंडीगढ़ में उनका एक बहुत नाम है कि आप उनसे बात भी करो, उनसे काफी टाइम में मिला भी हूँ। देन लेटर ऑन आई डेवलप्ड कि आई स्टार्टेड एंजॉयिंग सीइंग बॉलिंग ऑफ श्रीनाथ इन लेट 90s। तो उनकी बॉलिंग देखता था, आई यूज्ड टू फील वेरी गुड अबाउट दैट कि ऐसे मतलब कि ही यूज्ड टू बॉल वेरी फास्ट इन लेट 90s। तो वो चीज थी एक। तो लेटर ऑन फिर ऐसे करते करते एंड इन दैट मिड 90s में दुनिया में फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे थे। तो उनको देख के थोड़ा होता था कि आई आल्सो वांट टू बी अ फास्ट बॉलर। सो एंड वी हैड अ कल्चर इन चंडीगढ़ आल्सो दैट चंडीगढ़ छोटी जगह है, बट यहाँ से क्रिकेटर्स काफी निकले हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, 7 से 8 टेस्ट क्रिकेटर्स भी निकले हुए हैं। सो इन लेट 90s आई गेट 98 99 में युवराज सिंह वाज डूइंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी क्लोज टू हिम हियर। तो वहां से जब वो आते थे, सो आई ऑलवेज हैड दैट इन माय माइंड कि कि I used to bowl him in the nets in the practice matches. So sometimes I used to get him out. Sometimes he used to hit us also. So I always had that belief that if I can get him out, so I can also play for country. So he was best here in Punjab and in India. So yeah, definitely. Initially it was Kapil Paji, and then later on Shri Bhai Shrinath. ओके ओके। सो 2006 में जोहानिसबर्ग का टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका का इंडिया का फर्स्ट विन था तब, तो उस बारे में बताइए। जी वो एक बड़ा अच्छा मैच था मेरे लिए भी, बिकॉज नॉट एज अ बॉलिंग साइड, बट वी हैड मी एंड सौरव गांगुली दादा हैड अ ग्रेट लास्ट विकेट पार्टनरशिप व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड अस। देन वी एज अ बॉलर डिड अ जॉब, हमने उन्हें 84 पे ऑल आउट कर लिया। देन सेकंड इनिंग वी हैड 400 ऑफ वी गिवन देम 400 टारगेट। देन आई डोंट नो हाउ मच दे गॉट इन फोर्थ इनिंग, but we won that test match. So it was a great moment because South Africa में first time Indian team जीत रही थी, and so yeah, it was a great moment and I was very happy because it happened initially very early in my career, 2006 में. So and I had little contribution with my bat and I bowled also okay, but didn't got so many wickets as Shri and Reer Khan took. So yeah, it was a great moment in my life. तो कैसा लगा था बैटिंग विद सौरव गांगुली? यू हैड अ ग्रेट पार्टनरशिप विद हिम इन दैट टेस्ट मैच, तो व्हाट डिड दादा टेल यू ड्यूरिंग द पार्टनरशिप एंड हाउ डिड ही मोटिवेट यू? कैसे उन्होंने मोटिवेट किया, बढ़ावा दिया आपको, क्या बताया आपको उस पार्टनरशिप के ऊपर? See that was very challenging wicket.
तो Yeah. विकेट पे काफी घास था एंड इट वाज वहाँ पर थोड़ा बहुत सीम अच्छा हो रहा था। तो जब मैं अंदर गया तो डेफिनेटली दादा वाज सीनियर पार्टनर, तो मेरा सिर्फ रोल यही था कि दादा वाज आल्सो क्लोज टू हाफ सेंचुरी, सो फर्स्ट माय रोल वाज कि वो अपना 50 करें एंड मैं Hmm. उनको टाइम दूं उनको खेलने के लिए। तो ही वाज वेरी ओके विद हाउ आई प्ले। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बोला कि आप अपना गेम खेलें एंड जितना रन लास्ट विकेट पे बना सकेंगे हम, जितना भी 30 40 50 रन की अगर पार्टनरशिप होती है तो इस विकेट पे Hmm. बहुत टफ होगा। सो दैट Hmm. एक्चुअली दैट वी डिड एंड दैट उस पार्टनरशिप ने एक्चुअली मोमेंटम हमारे साइड पे शिफ्ट कर दिया था एक्चुअली, बिकॉज क्राउड वाज सो पम्प्ड, इंडियन crowd was so pumped in Yeah. after that partnership. Then Shrishant bowled a brilliant spell. उन्होंने 5 wickets लिए थे and first inning. So that was a great moment batting with Dada also. Yeah, so he made a comeback into the test team then. How was Dada inside the dressing room around that time? दादा वाज ऑलवेज हेल्पफुल। आई रिमेम्बर दादा के साथ मैं उससे पहले 3 4 डोमेस्टिक गेम खेल चुका था एंड दैट 2005 में वी वर प्लेइंग इन राजकोट में दिलीप ट्रॉफी का मैच था एंड मैं उसमें काफी मैंने अच्छी बॉलिंग डाली थी। सो दादा एक्चुअली फ्रॉम दोज डेज इन 2005, तो उन्होंने मेरे को वहीं से सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ही टोल्ड मी दैट यू गोइंग टू प्ले फॉर कंट्री, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो एंड कि मींस दादा वाज ऑलवेज देयर फॉर यंगस्टर्स और एनीवन, मतलब कि जिसको भी जरूरत होती थी दादा वाज ऑलवेज देयर। सो एंड आफ्टर दैट रणजी ट्रॉफी में 1 2 बार उनसे खेले, उनके आमने सामने खेले, 1 डे और 4 डे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में। सो इट वाज ग्रेट एंड and not only Dada and all other seniors were also great, with youngsters. So that era, matlab ki when all these great players played for country, so they were all helpful for youngsters. Okay. So, how did the team and then head coach Greg Chappell take Dada's comeback test? See, I was so young, I don't know what was happened उस टाइम पर क्या हो रहा था हाँ and जी. and because we were also very I was also very junior on that time. तो but I never saw anything like that because हमारे सामने तो कभी कुछ हुआ नहीं, but it was definitely Dada made a strong comeback even if something happened, but Dada made Mhm. a strong comeback and he did played great after that comeback. Scored so many runs afterwards. He scored double hundred against Pakistan in Bangalore and जी. scored 100 against Australia also in Test cricket and हाँ made a जी. great comeback in one day cricket also. So हाँ Dada जी. was always champion player. So definitely वो एक स्पोर्ट्समैन के कैरियर में एक आधा ब्रेक आ भी जाए तो बट स्ट्रॉन्ग पीपल डू कम बैक, सो दादा वाज वन ऑफ देम। Okay. तो कैसा था sharing dressing room with the Fab Four of Indian cricket, Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, VVS Lakshman and Saurav Ganguly? आपके ख्याल क्या है? कैसा था वो time? You missed out Anil Bhai, Virender Sehwag and Of course. Harbhajan Singh. Yes. See, they were all great. They were all great players and great human being. And I tell you one thing. First thing they do is they do feel home. Uh, they do make feel home for young cricketers. वो जब भी आप वो जाओगे ड्रेसिंग रूम में, तो I was actually very lucky to play with all these cricketers जी because बिल्कुल. they will be always great in Indian cricket. वो great ही रहेंगे हमेशा। तो I was very lucky कि उनके साथ मेरे को खेलने का मौका मिला एंड डेफिनेटली आई हैड अ वेरी गुड जब कि फॉरेन फॉरेन में कहीं भी खेलने आते थे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये मैंने ट्रिप बाहर के किए हुए हैं। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट फॉर सम मॉर्निंग साइकिलिंग विद अनिल भाई और लक्ष्मण के साथ शाम को कभी डिनर करने का, बिकॉज दे वर वेजिटेरियन एंड आई वाज आल्सो वेजिटेरियन। तो अच्छा. उनके साथ मैं खाना खाने जाता था कि जहाँ पर जब भी अब्रॉड ट्रिप करते थे। सो आई वाज ऑलवेज वेरी क्लोज टू दीज टू गाइस। तो बहुत ही मजा आया होगा ना उनके साथ क्रिकेट खेलने में, टाइम जी जी स्पेंड करने में, लाइफ स्पेंड करने में, और कितनी सारी एक्सपीरियंसेस मिले होंगे आपको. सी
सी आपने जो सा मेरे से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, हाउ टू कीप योर पॉजिटिविटी अलाइव। या सो यस ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, दीज आर द एग्जांपल फॉर ऑल इंडिया, फॉर द ऑल वर्ल्ड। दे वर द पीपल हु वर वेरी पॉजिटिव इनसाइड द ग्राउंड, आउटसाइड द ग्राउंड। दे विल ऑलवेज हेल्प क्रिकेटर्स, ऑलवेज हेल्प अदर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कभी मैंने उनको नेगेटिव बात करते नहीं देखा। दे वर ऑलवेज अप टू द मार्क। एंड स्पेशली कि दीज ऑल दीज 5 or 7 लेजेंड क्रिकेटर्स जिनका नाम लिया है मैंने, तो हाँ जी जब भी मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन आती है, इफ यू रिमेम्बर इफ यू रिमेम्बर अनिल भाई, अनिल कुंबले का जब उनका जॉ टूट गया था वेस्ट इंडीज में 2002 ट्रिप में, जी सो दैट टाइम ही इजीली कुड हैव ड्रेसिंग रूम में आराम से बैठ के मैच देखते, बट वो हम्म, उन्होंने आके मैच खेला और ब्रायन लारा का आउट भी किया, वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। सो बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से मोटिवेशन लेनी चाहिए। एंड देन सेकंड थिंग आई कैन से कि जैसे युवराज सिंह को ही सर्वाइव्ड विद कैंसर। तो यस देखो कितनी कितनी बड़ी बात होती है। बिल्कुल कोरोना से तो बड़ा है ना कैंसर। तो बिल्कुल आई बिलीव कि अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी है आप में, एंड इफ हम्म, यू रियली वांट, इफ यू हैव रियली हैव दैट विल टू विन एंड हम्म, टू अचीव समथिंग इन लाइफ। सो आई एम वेरी हम्म, लकी कि मैं युवराज सिंह के काफी क्लोज हूँ। एक्चुअली दैट जी हेल्प मी इन माय माय बैक बैक जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो जी उनसे वो मेरे से बात भी करे ना करे, बट आई ऑलवेज यूज टू हैव दैट मोटिवेशन ऑलवेज बिसाइड मी कि यार, कि अगर ये बंदा कैंसर से आके दोबारा से इंडिया के लिए खेल सकता है, तो मैं व्हाई नॉट, कि why can't I play again after my back surgery। तो मैंने उसके बाद कम बैक भी किया। एंड सो एट दीज टाइम्स दीज आर द पीपल, जब आप कोई चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, हम्म, उनको ये देखना चाहिए कि आप कितना अचीव कर चुके हो लाइफ में, एंड स्टिल यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो बिल्कुल अगर आप अगर आप उस मोमेंट को लेके कुछ डिसीजन गलत ले लोगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू रिग्रेट फॉर अ लॉन्ग। and then sometimes your families has to feel in that way। So हम्म, ये मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं या पुराने और फील्ड के लोग हैं, who have हम्म, done lot for countries, they have gone through so many things in life। तो हम्म, आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। यू नो हम्म, आप यह भी देख सकते हैं कि आपसे आज की डेट में आपके पास जो है, कुछ लोग उस चीज के लिए तरस रहे हैं। यू हम्म, डोंट हैव दे डोंट हैव दैट थिंग्स, मतलब कि जो आपके पास जितने भी आराम और सहूलियत की चीजें हैं इस टाइम पे, बहुत लोगों के बिल्कुल पास वो भी नहीं है। तो राइट आपने देखा है कितने हजारों लोग बेचारे सड़कों पे थे, एंड यू आर एट बिल्कुल होम, यू आर सेफ, यू कैन बिल्कुल स्टिल गेट अप एंड फाइट अगेन फॉर लाइफ। बट या कुछ लोगों को तो बेचारों को गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा, बट दे आर स्टिल सर्वाइविंग आल्सो। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, आई जस्ट वांट टू जी से कि डोंट लूज होप। अगर कोई चीज आप में लाइफ में प्रॉब्लम लेके आती भी है, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन बन जाएगा, बट यू हैव टू गिव टाइम आल्सो। हाँ तो मतलब अगर रिग्रेट अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले भी लिया लाइफ में, परफेक्ट तो जी होती नहीं है किसी की लाइफ, है ना? अगर या रॉन्ग जी डिसीजन ले भी लिया तो कैसे अपने आप को उठाना होता है? हाउ डू यू पुल योरसेल्फ अप एंड नॉट गिव अप? सी मैं आपको अपना ही एक चीज बताता हूँ कि जब मेरा बैक ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि मत करवाओ, और शायद ऐसे ही ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे वेट करता करता ऐसे मेरा 5 6 7 7 साल निकल गए, तो फिर मैं तो कभी खेल नहीं पाऊंगा। तो मैं जब भी ऑपरेशन करवाने गया, सो ओनली देयर वाज अ वन थिंग इन माय माइंड, डॉक्टर्स, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। मतलब जो भी उन्होंने बोले, जो भी हमारे कुछ भी लोग बोले, बट आई वांट टू मेक अ कमबैक। अगर मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ, आई वांट टू मेक अ कमबैक, चाहे वो मैं डोमेस्टिक में करूँ, मे बी आई विल नॉट प्ले फॉर कंट्री अगेन, बट आई वांट टू प्ले क्रिकेट, डजंट मैटर कि व्हाट लेवल आई एम गोना प्ले। तो राइट दिस वाज, मैंने एक बार दिमाग में सोच लिया था, और चाहे वो 1.5 सीजन हुआ, बट आई वाज हैप्पी, मोर देन हैप्पी कि हाँ मैंने दोबारा से खेला। एंड नेवर हैड अ रिग्रेट कि उस जो मैंने ऑपरेशन क्यों करवाया, और उसके बाद मैं इतना खेल भी नहीं पाया। आई नेवर हैड दैट इन माई माइंड, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि जब भी आप कोई चीज करने जा रहे हो, तो उसको 100% आपको श्योर होना माइंड में कि दैट आई ओनली वांट टू डू दिस थिंग। अगर आप 100% माइंडली श्योर नहीं होगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और मोटिवेशन सीधी सी बात है, अगर आप
मोटिवेशन कैसे लूज कर सकते हैं, यू नो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को दोबार से किसी में फेल हो भी रहे हैं, अगर फेल आप तभी होते हैं जब आप ट्राई करते हैं, अगर आप ट्राई नहीं करते तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। सो बिल्कुल। अगर आप इफ यू कीप ऑन ट्राइंग विद विद योर होल हार्ट, एंड अगर आप उस पे पूरा अपना दिल और जान लगा देंगे, तो आई गेस वन डे इट विल कम दैट यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो होप नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आपको काम है, जिस चीज में आप अच्छे हो, आप उस चीज पे अपनी मेहनत करें, उस पे परस्यू करें, और डेफिनेटली गॉड विल बी ऑन योर साइड वन डे। और कई बार किसी बंदे को जल्दी कोई सक्सेस मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। जस्ट वेट फॉर योर टाइम, डोंट गेट फ्रस्ट्रेट से तो कुछ नहीं होगा, कि फ्रस्ट्रेशन से तो फिर यू विल टेक ओनली रॉन्ग डिसीजंस, दैट्स इट। उसमें फिर नेगेटिविटी आ जाती है, अगर फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है तो नेगेटिविटी आ जाती है कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्या कब होगा, क्या होगा। तो बेसिकली यू हैव टू बी पेशेंट एंड बस करते रहो, डट के करते रहो, जो करना है, ठाना हुआ है वही करते रहो, राइट। एंड यू आल्सो हैव टू बी इन द रियलिटी। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस चीज के लिए अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। कई बार आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, सर्टेन एज तक खेलते रहते हैं, आपको लगता है कि मैं सक्सीड हो जाऊंगा, यू नो, बट यू आल्सो हैव टू आस्क योर वेल विशर्स कि आर यू रियली गुड एट इट। अगर आप उस चीज में अच्छे हो और मेहनत करके और अच्छे हो सकते हो, देन डेफिनेटली इन्वेस्ट द टाइम। अगर आप उस चीज में इतने अच्छे नहीं हो, तो डेफिनेटली आस्क एज योर सीनियर्स और आस्क एनीवन कि आपको अगर किसी चीज, उनको अगर बोलते हैं कि अगर आप इस चीज में इतना अच्छा नहीं हो, कुछ और चीज लाइफ में भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन टेक ऑल्टरनेट्स आल्सो। बट अगर आपको इफ यू आर 100% श्योर, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, तो टीम में सबसे फनीएस्ट प्लेयर कौन है? इज इट वीरेंद्र सहवाग? नहीं, मेरे साथ तो मैं तो आज तक जो सबसे फनी क्रिकेटर देखे हैं इन द राइट सेंस, इट वाज हरभजन सिंह एंड युवराज सिंह। अच्छा। और क्योंकि और हम पंजाब से खेला हूँ मैं सारी डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी रणजी ट्रॉफी। सो पंजाब की सारी टीम फनी होती थी, तो वहाँ पर सारे एक जैसे ही थे। सो यू नो दे ऑलवेज हैड अ गुड ह्यूमर, तो एक अच्छा माहौल था। So, did you interact with the South African fast bowling great Dale Steyn then, जब आप खेल रहे थे? नहीं, मैं उस टाइम पे नहीं, क्योंकि आई गेस डेल वाज आल्सो वेरी यंग 2006 में, और आई रिमेम्बर वो जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे। अच्छा। तो ही ओनली बोल्ड फ्यू ओवर्स इन फर्स्ट इनिंग, देन सेकंड इनिंग ही डिडंट बोल्ड। उनके कुछ हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आ गई थी और समथिंग लाइक दैट, समथिंग हैपेंड। सो आई नेवर हैड अ अपॉर्चुनिटी उनसे बात करने की। ओके, तो राहुल द्रविड़ कैसे थे एज अ कैप्टन? राहुल द्रविड़ वाज ग्रेट, यू नो, कूल ऑलवेज, एंड काम रहते थे, और यू नो कि मेंटली बहुत टफ थे, एंड जो से टफ कंडीशंस में थे, स्पेशली उनकी नॉक सबको याद हैं, जहाँ जहाँ पर खेली है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एंड ग्रेट प्लेयर थे, एंड कैप्टन ऐसे थे कि यू नो ऑलवेज यूज्ड टू प्रमोट यंगस्टर्स इन हिज ओन स्टाइल, एंड यू नो, and he was and still वो टेस्ट क्रिकेट के बिग फैन थे। so he used to work hard and used to tell us that you know टेस्ट क्रिकेट के लिए हमेशा you know मेहनत करने के लिए बोलते थे हमें। एंड आई रिमेम्बर उनका जो सा साउथ अफ्रीका में जब हम खेले थे जोहानिसबर्ग में, so he had few issues with, I guess उनके हाथ में कुछ इशू थे। so again comes to that point, mental strength। तो इन मतलब डिफिकल्ट कंडीशंस उन्होंने वहां पर इन अ डिफिकल्ट कंडीशंस वहां पर उन्होंने डिडंट गिव अप, एंड ही हैड अ ग्रेट पार्टनरशिप इन द मिडिल ऑर्डर। तो वही मतलब ग्रेट मोटिवेशन फॉर यंगस्टर्स, स्पेशली यू नो उसे देख के आप सीख सकते हैं हाउ यू कैन यू नो कैरी योर लाइफ। यू नो आपको क्रिकेट में कैसे कैसे आपके वर्क एथिक होनी चाहिए। बिग एग्जांपल फॉर द यंगस्टर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो 2006 में you were part of the team West Indies tour में and also won the test match in Perth। तो उन दिनों के बारे में बताइए, कैसे थे वो दिन 2006 के? 2006 में रिमेम्बर वी वन सीरीज इन 2006। इट वाज अ ग्रेट सीरीज, और मेरा डेब्यू भी था, टेस्ट डेब्यू था। आई प्लेड 2 टेस्ट मैचेस, फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, एंड वी वन द लास्ट टेस्ट मैच जमैका में। और हम पहला टेस्ट मैच और उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच
वी वर वेरी क्लोज टू विन, तो वो somehow draw हो गए थे टेस्ट मैचेस, एंड लास्ट टेस्ट मैच वी वन अगेन इन Jamaica, and so yeah, so it was a great win. और I remember team, I was actually, मेरा वो first trip था with the team abroad, so I remember it was mm, in Jamaica we won, and India I guess उससे पहले काफी साल पहले जीते थे वेस्ट इंडीज में. So at that moment, in 2006 we won in Jamaica, then we won in Johannesburg, then 2007 or early 2008 we won in Perth, and that was the period जब Indian team was doing well in abroad. Or Perth में everyone was thinking that Australia will definitely be pace and bounce in the wicket, but our fast bowlers bowled very well. Irfan bowled very well. Irfan got man of the match in that game. And Ishan bowled very well. That great spell he bowled against Ricky Ponting in that match. And third fast bowler, RP bowled brilliantly also. He took 5 or 6 wickets in a match. So yes, it was a great match, and so yeah, great memories. And that period, India did very well in abroad, and in between, India also won a series in England also, and in UK in 2007, which I was not part of it. So yeah, so it was a great 2-3 years where India really did well in abroad. राइट. तो आपने MS धोनी की भी इमोशंस देखी थी एज अ वेरी पावरफुल क्रिकेटर इन द टीम, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी तब उनके बारे में? कैन यू हियर मी? See, उनके बारे में तो डेफिनेटली सब अब तो सारी दुनिया जानती है एक्चुअली. हाउ हिज, या आई कैन हियर यू. उनके बारे में तो सारी दुनिया ही जानती थी, बट आफ्टर कमिंग इनटू द इंडियन साइड, बट वंस आई सॉ हिम प्लेइंग अगेंस्ट हरियाणा इन चंडीगढ़, तब उनका बिहार और हरियाणा का मैच था. तो ही स्कोर्ड 100, एंड जो उन्होंने सिक्सेस मारे थे वो ग्राउंड से बाहर मारे थे उस मैच में. तो आई वाज जस्ट देयर, आई वाज प्लेइंग फॉर पंजाब, तो मैं वैसे ही मैच देखने गया था उनका, कि क्योंकि मेरे घर के पास ही है वो ग्राउंड, सेक्टर 16 स्टेडियम. तो मैं वैसे, तो फॉर्चुनेटली वही बैट, और जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, सो ही वाज डेफिनेटली समवन who was very different from others and had a great talent. Or luckily for India, used great knocks, and he also India brilliantly. So won wonderful World Cups under him, 2070, 50 over game. So definitely वो भी थे, but he had a different definitely approach to the game. So cool and calm again, like Rahul Bhai, and and he did very well. And when he used to bat, he was different. Outside, he used to be very cool and calm. जब आप बैटिंग करते थे, तो he was very different. और बॉलर्स को शुरू पहले कुछ बहुत ही, मतलब काफी अग्रेसिव खेलते थे, and played brilliant knocks. ओके. तो अब आप कोचिंग करते हैं, तो टेल अस अबाउट हाउ यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द यंग प्लेयर्स. How do you coach them? You must be seeing so much of talent coming across as a coach. Yes, definitely. देखिए, चंडीगढ़ के काफी लड़के थे जो उनसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से थे. So now Chandigarh has his own team, Ranji team. So last year we got the affiliation, or thanks to the BCCI, and तो यहाँ पर एक्चुअली चंडीगढ़ के लड़कों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है. And in coming years, definitely I'm going to tell you, do well also in elite group. Last year we did well in plate group. तो नेक्स्ट जब भी हम क्वालिफाई होंगे, एंड इट विल फॉर चंडीगढ़ क्रिकेट ग्रुप में खेलेंगे. और चंडीगढ़ ऑलरेडी हैड वेरी गुड प्लेयर्स जो खेले थे हमारे लिए, एंड
They had some we experienced a good young cricketers, and जी unfortunately हमारे रणजी ट्रॉफी 4 day games में 4 matches में बारिश होगी, so those matches got washed out, so we हम्म, didn't qualify because of that. Otherwise we won all games and didn't lose any game. So yeah, we have a great talent, even young, in even younger teams under 16, 19, 23 जो उनसे फीडिंग टीम्स होती हैं रणजी ट्रॉफी के लिए या हायर लेवल के लिए. So we have a great talent in Chandigarh. I feel in coming years we will produce few cricketers for India also. And personally, I had a great year. So it was for me very satisfying that we did well. that's excellent. You know, at the beginning of the year, I met Yuvraj Singh, and वो बहुत ही excited थे to share his knowledge with the Chandigarh Ranji Trophy team. तो क्या वो अच्छे कोच बन सकते हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे बन सकते हैं. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? Uh, वो वो तो मतलब कि कि वो यू कांट बाय इट. तो मैंने भी उन्हें काफी तंग किया लास्ट सीजन. उन्हें 5 से 6 बारी चंडीगढ़ की टीम को थोड़ा सा पेप टॉक करने के लिए बुलाता रहता था उनको मैं. So जी it helped great, to the young cricketers. So he will definitely can become a good coach or a mentor to any यस team, to any world side team, or any यस IPL team or any state team. So he can be a great mentor or a coach to any team. So I used his services. तो उन्होंने लास्ट ईयर मेरे को मना भी नहीं किया. So he came every time and helped चंडीगढ़ बॉयज. एंड ही हेल्प एनी क्रिकेटर जो भी पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं, दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो. ही हेल्प्स एवरीवन जो भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. whoever wants his knowledge about the game. So he always there for all youngsters, and he is a brilliant human being. उन्हें he never say no to anyone. So I know him very closely. So he's a very genuine guy, and he can help any cricketer. And thank you, thanks to him for coming and giving a good knowledge to my team. Yeah, he is a brilliant person, completely, no doubts about that. And he Yeah, has done so much, even going through his ailment, his cancer. He yeah, encourages people, his players, his yeah, team, his yeah, everyone, whoever comes across his path, he's yeah, always yeah, giving positive thoughts. Kudos to yeah, him. definitely. Yes, जी तो एक आप yeah. अनटोल्ड स्टोरी बताइए जो आपने आपके आपके दिल के करीब है और आपने कभी बताई ना हो और हमेशा जब भी सोचते हैं उस बारे में तो आपको बढ़ावा ही मिलता है कुछ समथिंग अनटोल्ड दैट यू नेवर शेयर्ड. In cricket, It could be cricket, it could be your personal life, anything. uh, ऐसी तो मैं कुछ secretive kind of I'm not a secretive guy. मैं अपना I'm very open. I share my thoughts with my dear and close people. And Yeah. but yes, मतलब कि sometimes I wish कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि I wish जी कि अगर मेरे को शायद उस टाइम पे बैक इंजरी ना होती एंड तो कैरियर में इतनी प्रॉब्लम्स ना आती. And but one thing I want to tell every young cricketers, जी I kept on trying for 7-8 years. I जी kept on trying for 7-8 years after my back surgery. Trying means मतलब 7 to 8 hours every day trying to get better. चाहे वो ट्रेनिंग करनी थी, चाहे वो आप मेडिटेशन करनी थी, चाहे वो फिजियो वर्क था, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना था, ट्रीटमेंट लेना था. आई यूज टू इन्वेस्ट 7-8 hours फॉर 7 to 8 years कि मैं एवरी डे में ट्राई करता था कि आई वांट टू मेक अ कम बैक. सो जी ये था कि ऑलवेज नॉट इन द
not in the regret way, but in the positive way, that I always had that in my mind कि शायद मैं कुछ और भी कर सकता था कि और बेटर हो जाता शायद, और उस तरीके से कम बैक हो सकती. But beside that, I don't have anything in my mind personally, and I'm very close to my family, and I share each and everything with them, and many people knows it. Yuvraj is very close to me, and I share most of the things about my cricket career with him also. So so many people know about me very openly. Well, yes. So what would you like to tell your fans who all are watching and will be watching later on? आप audience को क्या बताना चाहते हैं, अपने fans को क्या बताना चाहते हैं इस crucial time पे? See, one thing, this is what I want to say, especially for all the young cricketers, what I want to say, that right now safety is very important for each and everyone, because आप चाहे घर के बाहर जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, आप सेफ्टी से जाएं. जो भी गवर्नमेंट की डू और डोंट्स हैं उसको फॉलो करें. एंड अगर आपको किसी को भी ऐसे फील होता है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो कि काफी हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे कैरियर में प्रॉब्लम आ जाएगी. सी, दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यू ओनली. सबके साथ ही हो रहा है, कि आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है. सो डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट इरिटेट, डोंट गेट अपसेट अबाउट ऑल दी थिंग्स. जो आपके हाथ में राइट नाउ है, यू कैन स्टिल डू मेनी थिंग्स व्हेन यू आर एट होम. यू कैन वर्क ऑन योर फिटनेस. अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह है वेयर गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग दी हुई है उसके बीच में जाके आप अपनी फिटनेस, एरोबिक फिटनेस कर सकते हो विद सोशल डिस्टेंसिंग, आप वो भी जरूर करें. और बट आप इतना जरूर ख्याल करें कि अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे और घर वापस आएंगे, उससे आपकी फैमिली को भी दिक्कत हो सकती है. सो मेरी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है दैट इस टाइम पे सिर्फ एक ही वर्ड मैं बोलूंगा कि जिसकी बहुत जरूरत है, वो है पेशेंस. आप पेशेंस रखें, और जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक और लाइफ विल नॉर्मल हो जाएगी. एंड जस्ट प्रे दैट ये चीज से हम निकल जाएं, सब इकट्ठे होकर निकल जाएं. एंड डू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो, जो उनसे कई लोग इस चीज को लेके मे भी थोड़ा सा ज्यादा अपसेट और डिप्रेशन में जाते होंगे. अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसा है, तो उसकी डेफिनेटली पर्सनली हेल्प कीजिए, उनसे फोन पे बात कीजिए. अगर वो आपके पास नहीं है, उनसे फोन पे बात कीजिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई बंदा तकलीफ में है तो उससे डेफिनेटली बात करके अगर उसे बेटर फील होता है, सो उसे भी अच्छे से बात कीजिए. तो राइट नाउ हम यही कर सकते हैं. बट जो भी हम बाकी चीजें हैं वो बाद में, जो भी हमारा काम है, जो भी जितना भी हो सकता है आप उतना जरूर कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन सेफ्टी एंड योर फैमिली सेफ्टी. तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए. और दिस इज ऑल माय मैसेज टू younger cricketers, or even to other young people who are doing well in their other fields also. सबके लिए सेम जाता है. बिल्कुल. तो जैसे आपने कहा कि बात करनी चाहिए, लोगों को शेयर करना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंगली इस टाइम पे नॉट ओनली स्पोर्ट्स पीपल बट स्पेशली स्पोर्ट्स पीपल, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी होती है ना, तो मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग, उनके लिए काउंसलिंग जरूरी है. आपको लगता है? जी, देखिए, अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जैसे कि मेरे खुद के जो से रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, जो से मेरे साथ अटैच थे लास्ट सीजन में, 18 से 20 लड़के थे जो खेल रहे थे. तो उससे भी कुछ ज्यादा लड़के जो मेरे को जानते हैं, काफी लोकल और कई और स्टेट से भी जानते हैं, तो वो मेरे को हमेशा फोन करते हैं, जरूर करते हैं. और उनकी बातों से मेरे को पता लग जाता है कि यार वो उनका दिमाग का इस टाइम क्या मेंटल स्टेटस चल रहा है. सो कई बार उनको थोड़ा सा पेप टॉक करना पड़ता है, थोड़ा पॉजिटिव बात करनी पड़ती है. सो वही चीज है कि अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि आप यू कैन हेल्प सम पीपल एट एनी काइंड ऑफ स्टेज, चाहे आप कैसी भी हेल्प कर सकते हो, आप जरूर कीजिए. मेरा तो ये मानना है कि हेल्प करने से आपका कुछ कम नहीं होता है, बढ़ता ही है. तो हेल्प कीजिए, हेल्प. और जो से जैसे आपने बात की, स्पोर्ट्समैन में डेफिनेटली एक एनर्जी होती है. तो देखिए, बहुत सी मैं बोलता हूँ कि फॉर अ स्पोर्ट्समैन सबसे बेस्ट चीज है
नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्समैन, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बेस्ट चीज है आप थोड़ा बहुत डेफिनेटली फिटनेस पे ध्यान दें अपनी फिटनेस पे। चाहे आप अगर घर में आप बहुत चीजें कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ और चीजें हैं घर में, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है जो सा, तो अगर उसको यूज कर सकते हैं, अगर आपने घर में आप इफ यू कैन अफोर्ड इट। और सबसे बेस्ट चीज है आप अगर आप ये सब चीजें भी नहीं कर पा रहे हो, यू कैन डू योगा, यू कैन मेक योर माइंड स्टेबल, उसे थोड़ा शांत रखें थोड़ा सा, एंड घर बैठ के आप ये सब चीजें कर सकते हैं रादर देन टॉकिंग एंड स्प्रेडिंग नेगेटिव थिंग्स। आप इन चीजों पे ध्यान दें। एंड स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं, जितने भी एलीट लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं या कुछ जो भी लड़के हैं, इन सबको पता है कि कौन कौन सी चीजें घर पर भी कर सकते हैं, क्या क्या फिटनेस ये घर पर भी कर सकते हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज इनको एक्सपीरियंस होता है, तो इनको पता है हम घर में क्या कर सकते हैं। तो ये उस चीज को एक घंटा 1 से 2 घंटे अपनी उस चीज को दें, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से 1-2 घंटे भी ब्रेक लें उस एक्सरसाइज के दौरान, कि आपको अपने बारे में सोचें, ठीक है ना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। और देखो जब तक ये टाइम जाएगा, जब तक ये कोरोना वायरस है, तो तब तक तो आपको अपने मेंटल स्टेटस को किसी ना किसी तरीके से तो अच्छा रखना है। तो यही चीज है, लेट नाइट्स ना करें, रात को लेट नाइट ना जागें, और सुबह जल्दी उठें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अच्छा खाएं, वेट ना बढ़ने दें। तो ये चीजें हैं कि मैं अपना पर्सनली तौर पे रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, कि मेंटली भी ठीक रहता हूँ और साथ में अपनी बॉडी को भी लुक आफ्टर करता हूँ, कि इस दौरान जब आप घर पे, और मैं घर पे रह के ही करता हूँ जो करता हूँ, मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो सब हर कोई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक ऑन द स्पॉट रनिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, यूजिंग योर ओन बॉडी वेट लाइक पुल अप्स, ऑल दैट, सब कुछ हो सकता है। You can do push-ups and squats, free weight squats. You can do, you can do sit-ups. You can do planks. You can do many other things. As you said, spot running you can do. You can do many yoga asanas at home. तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट यू जस्ट हैव टू हैव दैट विल कि मैंने कुछ ना कुछ रेगुलर ही करना है, अपने दिमाग को स्टेबल रखना है और अच्छी डायरेक्शन पे एनर्जी को लगाना है, रादर देन गोइंग इन द रॉन्ग वे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड कीप आवर स्पिरिट्स हाई, एंड आई होप एवरीथिंग गोज वेल अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया, and our condolences for the great actor as well. Thank you so much. We are seeing so for joining us. Thank you and one thing I want to say, that जहाँ पर भी हैं, जो लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली का खुद ध्यान रखें और नेगेटिविटी से बचें। और डेफिनेटली सुशांत के घर वालों से हमारी डीप कंडोलेंसेस है, and so all the best to everyone, and take care, and thanks for inviting me to the show. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you.